Okay, so Ashish, you are going for Coal India Limited interview. So date is still to come, but you are preparing for that. So we want you to introduce yourself to us first. Okay, sir. Good afternoon, everyone. My name is Ashish Kumar from district West Champaran, Bihar. West Champaran is the place from where Gandhiji has started his first Satyagraha movement. And my father is a teacher, and he has taught me mathematics till class 10. My mother is a housemaker, and she has managed my home very well. Coming to my educational background, I have done my basic schooling from my native place only. And I have done my BTech from NIT Patna in the stream of mechanical engineering. That's all. Okay, Ashish, I want to ask you something. You are from Champaran, right? Yes, sir. What are the problems in Champaran which you think as engineer you can solve? Sir, actually, Champaran is looking to be backward right now till it is not so much developed this time also. Bridges are not adequate and roadway are going to be well these times. But before 4 to 5 years before, roads are also road connectivity were also not good. And these are the specific problem right now. Okay, so can you tell me what was Champaran movement all about? उसके बारे में एक लाइन बता सकते हो, दो लाइन? Yes, sir, क्या था वो? Champaran was all about the due to the Gandhiji has come at Champaran movement because there was a special provision of Neel ki kheti, which is called in Hindi Neel ki kheti. The, on the basis of which Neel is also not adequately available, and people don't people were don't interested in Neel. That is why people are not people were not trying to grow Neel, but at the same time the Englishmen were forcing them, as the main problem with Neel that we can't eat Neel, and people Englishmen were forcing them to grow these things. That is Why? why, Why they wanted Neil? नील को because इंग्लिश में क्या बोलते हैं? sir, actually I'm not remembering what is it That is called. called indigo. But what was why they wanted indigo? Sir, actually indigo is used in several things. I am not remembering the things, but it was तुमने famous घर में in नील यूज किया क्या? घर में yes sir, नील यूज किया है? yes sir, कैसे? sir, for clothing and कपड़े धोने के लिए नील यूज नहीं करते क्या? yes sir, तो ब्रिटिश एक्सपोर्ट करते थे उसको. British were exporting, yes sir. तीन कथीय सिस्टम क्या था? सर 3 कठिया सिस्टम में वही होता था कि 2/3 उन्हें बेचना रखना वो उन्हें बेच देना पड़ता था और 1/3 ही वो रख सकते थे. 3 कथीया 2/3 नहीं होता. कितना होता है 3 कथीया? मैथमेटिक्स की टर्म है 3 कथीया. सर आई डोंट नो सर. 3/20. सर एक्चुअली आई डोंट नो दिस 3 कठिया अरे सिस्टम. यू आर सन ऑफ मैथमेटिशियन. यू शुड नो 3 कथीया. ये तो हिंदी का वर्ड है 3 कथीया. यस फिर सर. क्या हुआ था? किस किस डेट को गांधी जी आए थे चंपारण? सर डेट इज नॉट क्लियर टू मी, बट ये 1917 की कहानी है सर. एंड ऑन द कॉल ऑफ राम आर के शुक्ला, and also Rajendra Prasad has met to him at the first time when Gandhiji had came to there in Bihar. अच्छा, अगर तुम्हें एज इंजीनियर कुछ करना हो उस एरिया के लिए तो क्या करना चाहोगे? सर वेरी फर्स्ट तो पहले कुछ लोगों के लिए कुछ खोलना चाहिए, सो दैट कि पीपल आर नॉट सो मच इंटेलेक्चुअल और उनके पास नॉलेज की कमी है सर. मैंने खुद अपनी पढ़ाई की तो मुझे बहुत ढेर सारे नॉलेज कमी का फेस करना पड़ा मुझे. पीपल लोग वहां से पटना आते हैं पढ़ने के लिए और पटना में भी कोई खास फैसिलिटी नहीं है सर पढ़ने के लिए. पटना में बस स्कूल एनआईटी है, कुछ पटना में कॉलेज आईआईटी है, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं सर, प्रिपरेशन के लिए इंजीनियरिंग की आईआईटी और एनआईटी की प्रिपरेशन के लिए सर वहाँ पर नहीं है. और उसके बाद सर स्कूलिंग वाज नॉट गुड एंड टीचर्स आर आल्सो नॉट गुड. जो भी लोग पढ़ने वाले होते हैं या जो भी तेज होते हैं इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हैं या फिर कहीं और से भी होते हैं, तो वे लोग ट्राई टू माइग्रेट फ्रॉम एनी अदर they try to migrate to any other place in order to earn higher amount of money. अच्छा, अभी माइग्रेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है? जो माइग्रेंट बिहार वापस आए थे कोविड के टाइम पे, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? हाँ सर, अभी तो लोग यहाँ पे हैं और उनके साथ प्रॉब्लम भी बहुत सारी है. और
उसके अलावा बाढ़ भी सर जो आने के कारण जो है कि अभी कुछ दिन पहले चंपारण में ढेर सारी बाढ़ आई थी, तो लोग वहां से भी माइग्रेंट हुए थे। लोग बांध के किनारे आकर के बसने लगे थे, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही थी। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, इसका क्या यस सोल्यूशन हो सकता है? सर, बिहार में बाढ़ के लिए सबसे पहली बात है कि सर यहाँ नदियों का निकासी का कोई खास व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी पुअर, वेरी वर्स्ट आई कैन से। उसके कारण नालियों में भी पानी रहता है और नदी से भी पानी का निकासी का कोई खास व्यवस्था नहीं है सर। ओके, और एनीहाउ, व्हाई यू वांट टू जॉइन कोल इंडिया? sir, very first thing Coal India about Coal India is that Coal India is the major company which is dealing primarily in energy sector, which provides great satisfaction for anybody to become a Coal India. Although all PSUs are very good, but Coal India is the one which is providing coal or coal of India, and approx 80% of coal is provided by Coal India to लेकिन energy ये तो sector. रीजन नहीं है, 80% कोयला प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए तुम ज्वाइन करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी 3 नौकरी दे दूं, ऑनेस्टली बताओ कौन सी ज्वाइन करोगे? सर मैं कोल इंडिया एंड आई ज्वाइन, वांट ऑनेस्ट आंसर। ये सर ऑनेस्टली आई विल ज्वाइन कोल इंडिया, क्योंकि सर कुछ और रीजन भी हैं इनके अलावा। कोल इंडिया वेरी फर्स्ट थिंग दैट इट इज आल्सो एंड डीलिंग विद एनर्जी सेक्टर and which provide basic satisfaction for everybody. And apart from it, one of my senior who is already placed in Coal India, and I used to follow him after my graduation, after my BTech also. And before my BTech, I was also following. And I have seen what type of satisfaction he has. That I also want that type of satisfaction. That is why I think Coal India is better. Whenever I have started to prepare for any PSU, I have started to look at Coal India only. अच्छा, तुम्हें पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस पता है? सर रफली मुझे ज्यादा नहीं पता, बट सर अप्रॉक्स 51% शेयर इज 51% ऑफ शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज हेल्ड इन पब्लिक सेक्टर, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोबेबली आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स 70 और मोर परसेंटेज विल बी। अच्छा, तुम सुनते हो ना महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये क्या क्लासिफिकेशन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक जिसका कि 25,000 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हो, या फिर ये नंबर सर मुझे याद नहीं है, उसी या फिर इसी नंबर के डिजिट के अनुसार से हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी महारत्ना में आएगी या फिर कौन सी मिनी कोल रत्ना। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? सर इट कम्स अंडर महारत्ना कंपनी। ओके, यस कितने पब्लिक सेक्टर है महारत्ना के अंदर? सर 16 है मेरे ख्याल से, मुझे एडुकेट डेटा नहीं है वैसे। ओके, सो अपना बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ आशीष, कौन से हैं? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर है। थर्मल इंजीनियरिंग में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाई हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, बट अपार्ट फ्रॉम इट फ्लूइड मैकेनिक्स इज आल्सो देयर इन व्हिच आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा, कोयले की कैटेगरीज पता है तुम्हें? कोल की कैटेगरीज? सर 4 कैटेगरी है कोयले की। सबसे पहले है पीट, जो कि सबसे वर्स्ट होता है कैटेगरी। उसके बाद लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कैटेगरी ऑफ कोल। ये तुम कैसे बोल रहे हो बेस्ट एंथ्रासाइट है और पीट वर्स्ट है? क्यों बोला तुमने ऐसा? उनके बेसिस ऑफ उनके कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे मैंने बोला सर। कितना होता है कैलोरीफिक वैल्यू, एनी आइडिया? सर आइडिया तो नहीं है मुझे कैलोरीफिक वैल्यू का अच्छा, उसका ये कहाँ मिलता है इंडिया में? जो कोल इंडिया निकाल रहा है वो मैक्सिमम कौन से वाला कैटेगरी निकाल रहा है? सर मैक्सिमम तो जहां तक मुझे आइडिया है कि ये लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस निकालते हैं लोग, क्योंकि एंथ्रासाइट इंडिया में बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। आई थिंक कहाँ पे है एंथ्रासाइट? सर मुझे पता नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इट इज अवेलेबल आल्सो। ऑल्दो आपने नेवेली झारखंड का के नाम पास। सुना है? यस सर, नवेली हैव यू हर्ड अबाउट नेवेली? यस सर। सुना है नाम? कहाँ पे है यस ये? सर, स्टेट मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे लिग्नाइट का कोयला मिलता है सर। आर यू श्योर सर एंथ्रासाइट नहीं मिलता? सर मुझे एंथ्रासाइट के बारे में डेटा नहीं पता है सर। ओके, सो अभी इसमें जब आप बर्न करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अगर आप एंथ्रासाइट बर्न करोगे या लिग्नाइट बर्न करोगे या बिटुमिनस, तो क्या प्रॉब्लम होता है? सर सबसे पहली बात है कि एस कंटेंट निकलेगा। उसके अलावा जो स्मोक निकलेंगे वो हार्मफुल होंगे। और उसके बाद से कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण
हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी सर पर केजी, उसका जो भी बर्न अच्छा होगा। आशीष, मेरे को ये बताओ, आपने हीरा पन्ना नाम सुना है? सर हीरा हीरा पन्ना पन्ना ज्वेलर्स का मैंने नाम सुना है सर। ज्वेलर्स की बात नहीं ये कर रहा मणि हूँ, के अंदर आते हैं। रिलेटेड है। नहीं, ये मैं माइंस के नाम भी हैं। हीरा पन्ना मुझे, सर मुझे हीरा और पन्ना कुछ माइंस के नाम याद आ रहे हैं, बट हीरा उससे पन्ना ज्यादा मुझे नहीं। ज्वेलर्स भी है, हीरा पन्ना मूवी भी है, हीरा पन्ना आपका एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड भी है। अब क्योंकि सर कोल इंडिया जा रहे हो तो मैं ज्वेलरी की बात तो करूंगा नहीं। सर हीरा पन्ना, चूंकि मैंने ज्वेलर से इसलिए बोला क्योंकि ज्वेलरी भी माइन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। दैट इज वाई। डायमंड। यस सर, हीरा पन्ना हाँ ही। तो बताओ जरा, डायमंड माइंस और कोल माइंस में क्या डिफरेंस है? सर डायमंड जो होता है तो एक वेरी हाई प्रेशर पे जब कोयले को रखा जाता है और वेरी हाई बहुत दिनों तक रखा जाता है, तो वो इसी का एक स्पेशल क्लास हो जाता है डायमंड, और नेक्स्ट क्लास होता है ग्रेफाइट। अच्छा, अगर 100 टन कोयले को हाई प्रेशर पे रखूं मैं हजारों साल, तो 100 टन वो डायमंड बन जाएगा? सर क्वांटिटी वेरी कर सकती है सर। कैसे? जैसे आपने खुदाई की, एक कोयला तो डायमंड बन गया, एक कोयला कोयला ही है, ये ऐसा क्यों है? सेम ही जगह पे है, सेम ही प्रेशर पे है, क्यों? सर मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया है सर। ओके विशाल सर। Yes. Ashish, you mentioned heat transfer as your favorite subject. So can you define what is specific heat? Specific heat क्या होती है? सर स्पेसिफिक हीट होती है कि किसी भी बॉडी का 1 kg मास को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ That is दैट specific बॉडी। heat. यस ठीक है. Latent heat क्या होती है? What is latent heat? सर, किसी भी बॉडी का अगर फेज ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको फेज ट्रांसफर करने के लिए अगर 1 kg का बॉडी को 1 kg बॉडी को फेज चेंज करने के लिए कितना हमें एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। अच्छा, पता है आपको latent heat of water क्या है? What is latent heat of water? सर लेटेंट हीट ऑफ 2 कैटेगरी है वहाँ पे, एक फ्यूजन होगा और एक वेपराइजेशन होगा। Okay. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वाटर का अप्रोक्सीमेटली, मुझे जहाँ तक याद है सर, क्या मैं कैलोरी में बता सकता हूँ? Yes, yes, you can हाँ, tell. कैलोरी में सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस 180 होता है सर, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है सर, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो 80 होता है सर लेटेंट हीट ऑफ, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है कैलोरी में, 80 कैलोरी पर केजी। और जब वो लिक्विड से गैस में चेंज करता है तो शायद सर 180 होता है किलो कैलोरी पर केजी। देखो 80 and 180, तो ये तो latent heat of vaporization तो very high होता है. It's very high as compared to latent heat of fusion. सर मुझे एक्चुअली उसका डेटा याद नहीं आ रहा है, इस Okay. कारण से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है. So can you tell me how heat can transfer from one body to another body? सर बेसिकली हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। There is type of temperature difference. Then heat is from higher temperature body is transferring from the body at lower temperature. And if we have to transfer the heat from lower temperature body to higher temperature body, we have to add another pump or anything else according to second law, sir. अच्छा, आशीष, आपने सेम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या? सर if अगर दो बॉडी दोनों सेम बॉडी टेम्परेचर पे हों? सर दोनों बॉडीज अगर सेम टेम्परेचर पे होंगी तो प्लांक्स लॉ के अनुसार रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है सर, लेकिन वो रेडिएशन होगा सर। ओके। अच्छा, यू नो अबाउट नॉकटर्नल कूलिंग? नॉकटर्नल कूलिंग सुना है आपने? नो सर, नो आइडिया। अच्छा, हिस्टोरिक बैकग्राउंड में अगर हम जाए ना, तो लोग बर्फ जमाते थे राजा महाराजा के टाइम में, लाइक मराठा अगर आप मुगल सल्तनत के टाइम में पीपल यूज्ड टू फॉर्म आइस. वो क्या? यस, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? नो सर, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चलता था कि दूर दूर से जहाँ से बर्फ बन रहे हो, जैसे शिमला टाइप जहाँ पे ऑलरेडी बर्फ, वहां से राजा महाराजा मंगाया करते थे बर्फ। कुछ ऐसे लोग एक शैलो कंटेनर लेके उसको रात को रख देते थे चांद की रोशनी में, और सुबह तक वहां पे लेयर बन जाती थी बर्फ की. नो सर, नो आइडिया सर। Okay. Can you tell me what is you're talking about Planck's law and Wien's displacement law? What are these law? Can you define?
Sir, there Planck's law is the basic law of heat transfer due to radiation, and Wien's displacement law is one of the form of Planck's law. And according to Wien's displacement law, if anybody is emitting radiation of a specific wavelength, then the product of wavelength and the temperature of the body and the maximum temperature of the body on which the wavelength is emitted is constant, and it is given by lambda m into t equal to 2900 micrometer Kelvin. अच्छा, क्या बॉडीज गामा रेज, एक्स रेज ये भी हम रेडिएट कर सकते हैं? इस टाइप की रेडिएशन भी हम एमिट कर सकते हैं? एनी बॉडी कैन एमिट गामा और एक्स रे? Yes, sir. Gamma ray and X-ray can also be emitted at depending upon the temperature according to Wien's displacement law. Because everybody emits radiation in different wavelength region radiating from. But we don't study that gamma ray and X-ray radiation. So everybody is emitting radiation, but in what range? In what range? Sir, range can be anything, but we study in visible range generally, sir. No, there cannot be anything range. There is a particular sufficient range for thermal radiation. There is some particular range na for thermal radiation. If I will ask you what is that range, you have any idea about that? What is the range of thermal radiation? Sir, I think for sun which is emitting radiation, it is approximately 0.5 micrometer because its temperature is 5800. And sir, after that I don't have idea. आशीष, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट का केमिकल फॉर्मूला सेम है या अलग है? सर मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए, जहाँ तक सर आई डोंट हैव आइडिया इन दिस. सेम है या अलग है? मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि वो सेम है या अलग है. नो आइडिया सर, मुझे नहीं पता सर. अच्छा, दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम है या अलग है? सर कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगी सर. तो क्या कैलोरीफिक वैल्यू केमिकल फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करती? सर करती है सर. तो केमिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? सर मे बी, मुझे आइडिया नहीं है, बट आई विल स्टडी दैट. अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो कैलोरीफिक वैल्यू सेम होनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? सर यस सर. पर सेम तो नहीं है. सर एक्चुअली आई डोंट हैव आइडिया अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासाइट. अच्छा, कोल इंडिया में सबसे बड़ा पॉल्यूशन का क्या कॉज है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन कोल इंडिया? सर वेरी फर्स्ट कि हम चूंकि माइंस जब भी निकालेंगे तो उसे फ्लाई एश निकलेगी. उसके अलावा जो उसे ट्रक या फिर जो भी लॉरी है उसे ले जाएंगी तो उनके लिए जो भी पोल्यूटेंट लगेंगे, जो भी उनसे एमिट होंगे पोल्यूटेंट, वो होंगे. चूंकि माइंस के कारण जो भी माइंस का खदान होता है उसके आसपास से चूंकि हमें सारे जंगलों को काटना पड़ेगा. व्हाट अबाउट वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन? यस सर, मैं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग टू द टॉपिक आल्सो. सॉइल पोल्यूशन भी होगा बिकॉज वी हैव टू eject mines, and soil pollution was also there, and water level will also degrade due to that mining. तो फिर इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है कोल इंडिया. व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट दे डू? At the same time, अगर कोल इंडिया इतना पोल्यूशन फैलाता है तो they are also planning to, they have also planned to plant tree also at some places, and there is also some plan which is running in coal India. I think it's coal liquefaction plan, in which they are converting that coal into liquid form or gaseous form. I think they are converting coal into seen gas form. Actually, I don't. आपने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ किया था? Sir, industrial training was there in Tata Motors. What did you do in that? Industrial training में I have studied the improving efficiency of dust collector by using bag filters which are mounted near the dust collector. Yes sir. Okay, so ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्या इसको ऑटोमोबाइल में भी यूज कर सकते हैं? No sir, dust collector में क्या होता है सर, जब ढेर सारे जब फ्लाई एश निकलते हैं, फ्लाई एश जब बहुत सारे निकलते हैं तो उन्हें डस्ट, उनका जो डस्ट होता है वो डस्ट को वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन उसके में जो डस्ट में जो कलेक्ट होता है तो उसके कारण जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे नहीं रह पाते हैं. वो फिर भी हमें उन्हें इजेक्ट कर देना पड़ता है एयर में.
तो हम चाहते हैं कि उन्हें एयर में ना इजेक्ट करके उनको भी हम कलेक्ट करें। इसके लिए दे आर जो यूजिंग डस्ट बैक कलेक्टर आपने टाटा मोटर्स में डस्ट कलेक्टर पे प्रोजेक्ट किया, सीखा उसके बारे में, तो क्या टाटा मोटर्स इसको मोटर्स में यूज नहीं करता? ऑटोमोबाइल में डस्ट कलेक्टर यूज नहीं होता? सर वो लोग जो डस्ट कलेक्टर यूज कर रहे थे वो एक्चुअली क्या था कि जो भी ऑक्साइड लेयर या कुछ भी है जो कि जब क्लीनिंग प्रोसेस में जो निकलते हैं ऑक्साइड लेयर का जो डस्ट है, उन्हें चूंकि वे लोग एयर में इजेक्ट करने के बजाय एक जगह पर कलेक्ट करना चाहते थे। दैट इज वाई दे आर यूजिंग डस्ट कलेक्टर अलोंग विद द असेंबली ऑफ बैग फिल्टर्स। बैग फिल्टर्स आर देयर which are used to collect the particles which are of very teeny size, approx less than 5 micrometer also. They used to collect this. Okay, I think Vishal sir, we give him feedback now. Yes sir. Okay, so go ahead with your part sir. आशीष, इनिशियली देखो, एक तो इंट्रोडक्शन आपने पहले मेंशन कर दिया था, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, बट बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो रहा है। मेनी टाइम यू हैव यूज्ड दिस वर्ड कि आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया सर, आई डोंट नो, है ना? इतनी बार नहीं होना चाहिए, कुछ इसको चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है? सर एक्चुअली एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, इसके बारे में चूंकि मैंने पावर प्लांट में इस सबको क्लासिफाई करके रख दिया, मैं पढ़ूंगा। दैट इज वाई मेरे पास उसका आइडिया ज्यादा नहीं हो पा रहा। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा डिफेंसिव मत रहो, थोड़ा सा कूल रहो, और इफ यू डोंट नो सर यू कैन गिव ए स्माइल ना, सर आई डोंट नो, वो ऐसा नहीं, उसको उस तरह से मतलब मत लो, है ना? आप अपने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप लूज कर रहे थे वहां पे। ऐसा हो सकता है कि यू डोंट नो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपको वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है ना, ठीक है? और हाथ थोड़े नीचे रखने हैं, वो यहाँ ही क्यों आ रहे हैं, वो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये अच्छा गेस्चर नहीं होता। सर मैं ऐसे बोल रहा था। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू एलेबोरेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी जो कर रहे हो ठीक है, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये ओके सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर, आई विल कट इट फ्रॉम नेक्स्ट। ठीक है। और जब आप बोलो हीट ट्रांसफर दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये थोड़ा स्टडी करो यार। आपको ये रेंज वगैरह नहीं पता, थर्मल रेंज, थर्मल रेडिएशन की, ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन? सर एक्चुअली मुझे पूरे फॉर्मूले पता थे, मैंने सारे जो डायमेंशनलेस नंबर हैं वो सारे पढ़ लिए थे। वो फार्मूले थोड़ा ना पूछेंगे इंटरव्यू में, फार्मूले थोड़ा ना पूछेंगे आपसे। ये सर मैं रेंज पूरे देख लूंगा सर, और बेसिक मैं पूरे क्लियर कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, थोड़ा सा बेसिक उस पे और काम करना है। स्पेसिफिक हीट यू हैव डिफाइंड, लेटेंट हीट आल्सो यू हैव डिफाइंड करेक्टली, लेटेंट हीट, फ्यूजन, वेपराइजेशन। बस मेरे को थोड़ा सा, एक तो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगा कई जगहों पे, कुछ जगहों पे, है ना, जब आप इसको देखोगे सुनोगे तो वो नहीं होना चाहिए था। और एक थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस मेरे को कम लगा, है ना? और टेक्निकली आपको कुछ जगहों पे काम करने की जरूरत है ना। इफ यू विल इंप्रूव यू विल एबल टू परफॉर्म वेल। अभी आपके पास टाइम है आशीष। यस सर। टेक्निकली द सब्जेक्ट विच यू आर मेंशनिंग, प्रिपेयर ऑल दिस सब्जेक्ट्स, उनको थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, ठीक है? रिमेनिंग ऑल सर विल डिस्कस विद यू। ओके आशीष, आप इंट्रोडक्शन के लिए क्यों तैयार नहीं थे? यू आर सेइंग आई एम नॉट रेडी फॉर इंट्रोडक्शन। सर एक्चुअली क्या था कि मुझे वही बैग फिल्टर ये सब कुछ ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं था सर। उसके अलावा उसमें जो साइक्लोन सेपरेटर का भी है तो उसको मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट ये थोड़ी होता, वो तो वैसे पूछ लेगा तुमसे। नहीं सर, उसके अलावा मैंने अपना जो मैंने बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण, 3 कठिया सिस्टम, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में था सर कि मुझे ये सब चीजें भी करनी है 3 कठिया सिस्टम। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपसे सर जब स्नैप मेरा हुआ था तो उसमें आपने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ लो, तो वहां पर भी मैंने वो सब चीजों को लिखा। तो 3 कठिया सिस्टम भी मैंने लिखा था सर, इंक्लूडिंग द डेट व्हेन गांधी जी हैज रीच्ड द मोतिहारी, द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम को भी मैंने लिखा था। लेकिन चूंकि मैंने इस टाइम में ये सब चीजों को देखा नहीं था। ये सर 3 कठिया नहीं हो तो मैंने आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, एंड उसको याद रखना। नील क्या है, इंडिगो क्या है, ब्रिटिश को क्या ट्रबल थी, ब्रिटिश प्लांटर्स कौन होते थे, चंपारण का नाम ले लिया ना तो कुछ पूछ सकता है तुमसे। चंपारण बहुत फेमस चीज है वो, चंपारण। एंड नंबर 2 के तुम्हारा जैसे सर बता रहे थे कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ये मेसोपोटामिया कहाँ है, पता है तुम्हें मेसोपोटामिया? सर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता है सर, इट्स इन ईरान। ये सही है आंसर। तुम्हें ये ऐसे स्माइल करते हुए आंसर कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लेकिन आंसर कर रहे हो। बीच में तुम क्या बोल रहे हो, मेसोपोटामिया कहाँ है, पता नहीं सर, इरिटेट हो गए, पता नहीं सर। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मैं तुमसे भाई साहब टाइम क्या हुआ
यार मेरे को नहीं पता, अंडरस्टैंड। एक तरीका है कि सॉरी यार भाई साहब नहीं पता, दूसरा होता है मेरे को नहीं पता यार। तुम ऐसे इरिटेट से हो रहे थे कि यार मेरे को नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का। इफ यू डोंट नो, पहली बात तो थोड़ा सोचो, ऐसा Yes. उसको लगे कि सोच के आंसर कर रहे हो। बिल्कुल सर। मैंने बोला भाई कैलोरी इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, थोड़ा सोचो, फिर थोड़ा ऐसे इंटरप्रिटेशन लगे कि तुम सोच रहे हो, फिर स्माइल कर रहे हो, फिर बोल रहे हैं सॉरी सर। ऐसे इनकार करने का एक तरीका होता है, इनकार ऐसे नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हारे इनकार करने के, और इनकार जो करना है आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, ऐसे इधर उधर नहीं देखना है, अंडरस्टैंड। सो एक जो द वे यू से नो, उसका एक मीनिंग होता है आशीष, अंडरस्टैंड कि आपको वो सारी चीजें नहीं आएंगी वहां पे। लेकिन जैसे मेसोपोटामिया तुम्हें नहीं पता क्या है, लेकिन तुमने फिर भी जो तेरे को आता था, हाँ सर मैं जानता हूँ एक सभ्यता है वो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे मेसोपोटामिया भी एक सर सिविलाइजेशन थी, और वो ईरान की तरफ है, दो आई थिंक दैट इज इराक, लेकिन तुमने फिर बोला ईरान की तरफ थी। तो वो तुम इंफॉर्मेशन जितनी है उतनी तो तुम बता रहे हो, राइट? तो ऐसे ट्राई करो। काफी क्वेश्चन में आशीष आपने पहले ये वर्ड बोल दिया कि सर मेरे को पता नहीं है, उसके बाद आप उसकी कुछ चीजें बता रहे हो। उससे अच्छा है कि फर्स्ट व्हाट यू नो अबाउट दैट, फर्स्ट टेल मी, Think over it. थिंक ऑफ दैट एंड टेल अस कि अबाउट दैट कि दिस इज द थिंग, देन यू कैन से सर आई डोंट नो अबाउट मच मोर अबाउट दिस, और दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट डेट। समझ रहे मेरी बात? Interview is art of telling or not telling, you know, that you need to learn सर that. जब बस मुझे यही दिक्कत हो रही है सर, जब when I am trying to express myself, what I am trying to express it, whether it is right or not wrong, I am little bit confused while I am saying that whether it should be right or wrong, what I should say. तो तुम बोल दो ना ये लाइन, बोल सर आई एम नॉट वेरी श्योर, ये लाइन बोल दो, बात खत्म। सर आपने पूछा भाई साहब ये चंपारण इस तरफ है कि इस तरफ है, आई एम नॉट श्योर भाई साहब, पर मेरे को लगता है इस तरफ है। जब तुमने बोल दिया आई एम नॉट श्योर तो तुम बच गए। आई एम नॉट श्योर एक, हाँ तो बोलो उसको, क्या ट्रबल है? सर क्या वेरी फर्स्ट में मैं बोल सकता हूँ कि सर आई एम ऑल्दो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट इट शुड बी। पहले सोचो, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो सोच के बोलो सॉरी सर नो आइडिया। अगर लेकिन थोड़ा सा लगता है तुम्हें कि हाँ इस तरफ हो सकता है, कई बार होता है ना ऐसा कि शायद ये है, यस तो बोलो आई एम नॉट वेरी श्योर सर, बट कई क्वेश्चन में तुमने बोला भी है कि सर मेरे को पक्का नहीं पता लेकिन ऐसा है। जैसे हीरा पन्ना है, हीरा पन्ना पूछा ना मैंने तुमसे, अब ये क्वेश्चन एक सरप्राइज क्वेश्चन था, पता नहीं हीरा पन्ना सर क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने सर आई डोंट नो हीरा पन्ना बट आई हैव हर्ड अबाउट इज देयर इज अ नेम ऑफ ज्वेलरी शॉप और समथिंग। तो तुम बोलो ना उस चीज को कि आई एम नॉट वेरी श्योर सर बट यस आई थिंक इट इज ज्वेलरी ब्रांड। तो वो बोलो जो जहां पे तुम्हें नहीं पता वहां बोल दो मेरे को इतना ही पता है, आई डोंट नो मच। डरने वाली बात नहीं यार, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू डोंट नो हाउ डू यू से यू डोंट नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो आशीष, यस आई थिंक सर विल आल्सो बी एग्री विद मी। देखो इंटरव्यूअर क्या है, वो आपको देगा ही कुछ, ले तो कुछ भी नहीं सकता ना आपका। यस तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको देंगे ही, तो आपको कंफर्टेबल फील करना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा गेस्चर शो करना चाहिए। सर कई बार ऐसा होता कॉन्फिडेंस, है ना, आई नो आंसर, यस सर आई एम कमिंग ऑन दैट वर्ड। कई बार ऐसा होता है सर आई नो आंसर बट एट द सेम टाइम ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पहले के वाले जो भी बातें हो चुकी होती हैं इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, उनके कारण कई बार ऐसा होता है कि आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट एट दैट मोमेंट दैट व्हाट आई शुड से एट दैट टाइम, बिकॉज पिछले बार के भी जो स्नैप हुए थे तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे, क्योंकि सर ने बताया था कि मैंने कुछ गलतियां भी की थी, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक क्वेश्चन था जिसमें कि रबर का मैं डायग्राम ही नहीं बता पाया था, 0.2% बताने की जगह मैं 0.5% ऑफसेट बोल चुका था। तो वो जो गलतियां हुई उसके कारण आगे वाले क्वेश्चन पर भी इफेक्ट पड़ गया। आशीष थोड़ा टाइम लो। अच्छा ये बता कॉन्फिडेंस आता कहां से है आशीष, क्या लगता है तेरे को कॉन्फिडेंस कहां से आता है? और कॉन्फिडेंस तो वेरी फर्स्ट कि अपना नॉलेज से आता है, उसके बाद नहीं सुन, दोबारा सुन। अभी तूने बोला कि सर मेरे को रबड़ का आता था लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आंसर नहीं कर पाया। इसका मतलब नॉलेज था तेरे पास लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से तू आंसर नहीं कर पाया। मेरा क्वेश्चन वही था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहां से आता है। मैं बताता हूं तेरे को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हो ना, तो आप डरते हो। आप क्यों डरते हो? कि पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी कि रिजेक्शन होगा। दिमाग से निकाल देना 2 मिनट के लिए, रिजेक्ट भी हो जाएगा तो क्या यार लाइफ तो चलेगी? नहीं चलेगी, रुक जाएगी लाइफ। यस दूसरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो तुम्हें खा जाएंगे क्या? वर्स्ट केस क्या होगा? लैपटॉप से बाहर आके खा जाएगा तेरे को, या वहां से कुर्सी से खड़ा होकर तेरे को खा जाएगा? नहीं होगा।
जिस दिन तूने आशीष ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को डरना नहीं है, जितना आता है मेरे को आंसर करना है, सिलेक्शन रिजेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, मैंने अपना 100% देना है भाई। कॉन्फिडेंस पहले आएगा, नॉलेज जितनी तेरे को है वो बाद में डिस्प्ले हो जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचता है कि मेरे को सारी बुक्स रट जाएं तब मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। जितना तेरे को नॉलेज है उस नॉलेज के प्रोपोर्शनल कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर, दैट्स इट, कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस शुड बी सेल्फ पॉजिटिव टॉक, नॉट टू फियर, नॉट टू फोकस ऑन रिजल्ट, नॉट टू वरी अबाउट दोज पीपल एंड दिस रिहर्सल व्हाट यू आर डूइंग। हमारे साथ रिहर्सल कर रहा है, बात कर रहा है, अब आ जाना चाहिए कॉन्फिडेंस यार, ठीक है, ऐसे लोग वहां बैठे होंगे, दैट्स इट। तो नॉलेज वाले की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये सही है कि अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो डरेगा आदमी, लेकिन तुम लोगों का केस वैसा थोड़े है यार, रिटन एग्जाम निकाले हो तुम लोग, तो ऐसा थोड़े कि कुछ भी नहीं आता है, यू नो द थिंग्स। बट अब वो चीज बाहर निकले, इसके लिए कॉन्फिडेंस इज प्री रिक्विजिट। नॉलेज पहले आएगा फिर कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस पहले आएगा और उसके बाद नॉलेज डिस्प्ले होगा, और कॉन्फिडेंस लाने की स्टेज आपके हाथ में है। वो तुम्हें सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना है, डरना नहीं है, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, और बिल्कुल काम कूल होके अपना इंटरव्यू दो। और नंबर 2, इंटरव्यू से पहले आधा घंटा पहले बैठ जाओ। जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं लोगों का इंटरेक्शन करता हूँ, तुमने देखा होगा, योर पीडीएफ पे डालता हूँ बड़े बड़े लोगों का, जिनके नाम सुन के भी डर लग जाएगा कि यार वो तो डायरेक्टर है, यार वो तो बहुत बड़ा आदमी है, राइट। जैसे डीआरडीओ चीफ है, अब बहुत बड़ी चीज है आईटेट वाला मैंने देखा था सर आपका। हाँ, तो तुम देखो वो इंटरव्यू जब लेते हैं हम, तो मेरे को भी, अब उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं आधा घंटा पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ कि मैंने सर से ये क्वेश्चन पूछना है, मैंने डरना नहीं है, मेरे को बात करनी है सर से, बड़े आदमी है लेकिन मेरे को बात करनी है, तो मेंटली प्रिपेयर होता हूँ मैं। वैसे तुम मेंटली प्रिपेयर होने की ट्राई करो, इंटरव्यू से पहले आधा घंटा बैठ जाओ, काम हो जाओ, कूल बिल्कुल, और अपने आप को सेल्फ पॉजिटिव टॉक करके कि मेरे को ज्यादा नहीं सोचना, जो मेरे को आता है मैं बोल दूंगा। सर सेल्फ पॉजिटिव टॉक की बात होती है सर, तो क्या शीशा के आगे अपने आप की नजरों से नजरें मिला करके बातें हो सकती हैं? शीशा के आगे नहीं, कुछ आंख बंद कर, शीशा के positive- आगे नहीं, आंख बंद कर ले बस, आंख बंद कर और पॉजिटिव सोच अपने बारे में कि मैं करूंगा बस, दैट्स इट, बी रिलैक्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है यार, पॉजिटिव सोच, और रिजल्ट के ऊपर फोकस मत कर, अगर नहीं भी होगा तो लाइफ रुकती नहीं है, ये सोच, बस चीजें मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट।